हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का मैं चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने वाला हूँ। बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर थर्ड, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर. In this chapter, we considered the solution of two pair of linear equation, two variables. So, what is pair of linear equation, two variable? First we understand, before starting this, first we understand linear equation of two variable. Ax plus by plus c equal to 0 is linear equation of two variable. Why we say this is a linear? Because both variable x and y has power 1. That's why it is called linear. Why we say it is equation? Because it has equal sign, left hand and right hand two sides. That's why we say equation in two variables. It has two variables x and y. In ninth standard, you understand how we draw the graph of linear equation two variable. In chapter fourth हम लोगों ने वहाँ पे ग्राफ्स बनाए हैं, तो वही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वहाँ से पढ़ चुके हैं. तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल यहाँ पे इसमें क्या चेंज हो जाता है, बस आगे आ जाता है पेयर. क्या आ जाएगा? पेयर. अब चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. व्हाट आर मीन ऑफ पेयर? पेयर मीन्स टू. So standard form of pair of linear equation two variable is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1 does not equal to 0, b1 does not equal to 0 and a2 does not equal to 0, b2 does not equal to 0. a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स. और ये जो हो जाएंगे a1 b1 c1, ये सभी कौन से नंबर्स हो जाएंगे? रियल नंबर्स. बस क्या नहीं हो सकता? a1 b1 और a2 b2 जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है. मेथड्स ऑफ सॉल्विंग. अब इनको सॉल्व करने के मेथड्स, ग्राफिकल मेथड और algebraic method. There are two methods. First method is graphical method and second method is algebraic method. In algebraic method, we solve the pair of linear equation two variable by substitution method, by elimination method and by cross multiplication method. So basically there are only two methods, but in algebraic method it exists three methods, that is substitution method, elimination method and cross multiplication method. So what is consistent system? A system of equation is said to be consistent if it has one or more solution. If it has one or more solution, then it is called consistent. Inconsistent, a system of equation is said to be inconsistent if it has no solution. So now we consider this chart. If a pair of linear equation is given by a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then the following situation can be arisen. First one, if we find out the ratio of a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2. In this case, the lines are intersecting. Graphical representation of the line is intersecting. And the algebraic interpretation, it has unique solution and consistent. Second, if the ratios of two equations are a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but doesn't equal to c1 upon c2, then it has parallel lines. Parallel lines, and algebraic interpretation is no solution or inconsistent. Third case, if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Coincident lines. ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन्स आएंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कॉन्सिस्टेंट, डिपेंडेंट. इस केस में जो लाइन्स होंगी वो आप इस तरह से समझ लीजिए कि वन लाइन देन सेकेंड लाइन, और अगर दोनों लाइनों को देखें तो दोनों लाइनें एक के ऊपर एक होगी, मतलब ओवरलैप करेंगी. इस केस में लाइन्स कैसी होंगी? दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी. बोथ लाइन्स आर पैरेलल. और इस केस में लाइन्स कैसी होंगी? व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ इट इज़ इंटरसेक्ट अ पॉइंट. तो तीनों के केसेस इस तरह से हैं. इनको बेसिक को अच्छे से देख लो.
फिर मैं एक एक अभी मेथड एक्सप्लेन करूँगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करते हैं। तो फर्स्ट डे में आप ये सारा बेसिक पढ़ लेंगे, ठीक है। इस सारे बेसिक को पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। Exercise 3.1. In exercise 3.1, first question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as you old. Represent this situation algebraically or graphically. So first you consider the age. Let present age of Aftab be X years and present age of his daughter be Y years. तो हमने दो चीज़ें राइट कर ली, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस फर्स्ट, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो, एगो वर्ड आए, बिफोर आए, तो हम लोगों को माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 7। तो बिफोर 7 years या 7 years एगो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? सपोज आज 10 years है, तो 7 years एगो क्या होगी? 3। कैसे? 10 - 7। जस्ट लाइक जब भी एगो या बिफोर आए तो हम लोग माइनस कर देंगे, तो दोनों की एज क्या हो गई? अगर 7 years बिफोर की बात की जाए तो 7 में माइनस कर दूंगा आफ्ताब की प्रेजेंट एज से, जो आज की प्रेजेंट एज है उससे, और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज से भी मैं कितना माइनस कर दूंगा? 7। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब बोल रहा है 7 years एगो, मैंने 7 years एगो दोनों की एज निकाली। आई वॉज मीन्स आफ्ताब वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, यू का मतलब उसकी डॉटर, तो 7 का यहाँ इंटू कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? फॉर्म 7y - 49, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड 7y + 49 x - 7y -7 को यहाँ माइनस करेंगे, 42 = 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकेंड, इन केस सेकेंड 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years, 3 year हैंस, इस केस में हम लोग क्या करते हैं? दोनों की एज में 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या है? 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 year बाद, तो 3 year बाद हम लोग क्या करेंगे? जो प्रेजेंट एज होगी उसमें कितना ऐड कर देंगे? 3। हमने यहाँ दोनों की प्रेजेंट एज में कितना ऐड कर दिया? 3। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर से कि मेरी एज कितनी होगी? जितनी आपकी एज थी उसके 3 times। तो इसमें काय का मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 का। तो x + 3 = 3y + 9 लेके आओ, यहाँ ट्रांसफर करो, -3y - 9 = 0, x - 3y - 6 = 0। तो ये दो मैंने क्या बना ली? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बना ली। तो हम लोगों को अलजेब्रिकली सिचुएशंस बनानी थी, तो अलजेब्रिकली क्या हो गई? अलजेब्रिकली सिचुएशंस बन गई, x - 7y + 42 = 0 और दूसरी x - 3y - 6 = 0। दीज आर द अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग कौन सा रिप्रेजेंटेशन करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, x minus 7y plus 42 equal to 0. Write x in term of y और y in term of x, जो आप चाहें वो कर लें. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप 42 को साइड 7y को साइड लेके जाएंगे, 7y पॉजिटिव का हो गया, 42 उधर ले गए 42. इसके बाद लिखते हैं वी हैव फॉलोइंग टेबल. नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी आप लोग ग्राफ बनाते थे तो उसमें टेबल बनाते थे. यहाँ एक्स राइट कर लें, यहाँ वाई राइट कर लें. एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू को पुट करेंगे अपने मन से. सपोज मैंने जीरो रख दिया, इफ़ वी पुट वैल्यू ऑफ वाई एज ज़ीरो, या सपोज हमने ज़ीरो ना रख के अगर ज़ीरो रखते हैं तो ये 42 हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बनाने में दिक्कत आएगी. सपोज मैं 7 पुट करता हूँ, कितना मैंने पुट कर दिया 7. अगर मैंने 7 पुट कर दिया तो 7 7 जब 49, 49 माइनस 42, तो ये भी क्या हो जाएगा 7. तो 7 सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है. 6 पुट करके देखो, अगर मैं 6 पुट करता हूँ तो 6 7 जा 42, 42 माइनस 42 0. तो ये 2 पॉइंट्स आ गए. प्लॉट सेवन कॉमा 7 and 0,6 on the graph paper. These points represent equation of line. This point represent equation of line x minus 7y plus 42 equal to 0. Now we taking equation second. So equation second is x minus 3y minus 6 equal to 0. Write x in terms of x equal to 3y plus 6. Write down we have following table. We write the value of a y. Suppose we write the value of y 0. So value of x is 6. Write down value of y is minus 3. So it is 3. Write down value is minus 2. So we put 0. We can take 2 or more points for representing a line. Minimum 2, maximum 3 or 4 as you wish. बट मिनिमम 2 पॉइंट्स हम लोगों को चाहिए एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए. प्लॉट प्लॉट 6,0 3,-1 0,-2 on the same graph paper. This point represent equation of line. This point represent equation of line x minus 3y minus 6 equal to 0. So draw the graph.
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। आप ग्रेड लिया करो +8 से -8 से +8 तक, इजीली आपकी नोट में बन जाएगा। ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत अच्छा आएगा, करेक्ट आएगा, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, तो ग्राफ पेपर पे ही बनाएं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Also write down this as x or x dash axis. This is y or y dash. Now plot the points of the first equation. The points are 7, 7. First equation, the points are 7, 7 and 0, 6. So we plot point 7, 7. 7, 7 is the position of 7, 7 is this. This is the position of 7, 7, and the position of the another point is 0, 6. So 0, then 6, 0, 6. So join these 2 points. And draw the line. This line is passing through these 2 points. So this is a line. Join this line. This line represents x minus 7 by plus 42 equal to 0. And take another points 6, 0. This is 6, 0. 3, -1. This is 3 and this is -1. 3, -1. 6, 0, 3, -1, and third point is 0, -2. This is 0, -2. Then join these points. So we get an equation x minus 3y minus 6 equal to 0. 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखा है, उसी तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, इतना करना है। इसी के साथ आप इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स और कंप्लीट करो। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करके एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.2। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बेटा तो लाइक ज़रूर करो।